Assalamualaikum dear viewers, hope you are fine and great as well. Especially this video is about two problems which are happening currently in the Fiverr.com. Okay, basically these two problems is for everyone, the experienced seller as well, the beginner seller as well. So let's discuss first the problem and then we will tell you solution, that how you can resolve this solution. But before going to the problems, I just want to tell you that these two problems only occurring in the Fiverr.com. Basically there are several platforms for freelancing, but these two issues happening in only the Fiverr.com. Okay, the issue number one is that buyer request, that why the beginner seller is not getting the buyer request. So dear friend, there is some special techniques. When you will apply that technique, then you will get the buyer request. So bring the buyer request on our profile is not an easy task. It comes with the special techniques. Okay, so the second issue is that when the seller clicking on its gig in the Fiverr platform, its gig showing the NA. NA means I think not applicable, we can say that. Now when we click on our gigs, everything in the gigs like action, its reaction, its impression, its click, its views, means what our performance shows in the gig, everything just show the NA. Like before the this problem, we can see our performance in the gig where our graph of action, clicks and impression is going on, so we can move accordingly. Okay, but when this issue happening, we are not able to see the graphs and trend of our gig performance, we can say that. Okay, so in order to solve this problem, I will tell you that why this problem is happening in everyone profile and especially Fiverr.com, and I will tell you that at what level it can impact your profile. Okay, so now let's move on the laptop screen. We will open the Fiverr application of any student and I will show you the problem there and solution as well. So stay tuned and don't leave in half. Hope you will get a good solution in this video. Let's move on the laptop screen. This is our laptop screen. So here I have opened my own profile. You can see I'm Athli875. Shukr Alhamdulillah, I am level 1 seller. So let's move on our problems and solutions. Okay, first let's move on the gig issue. When you click on the gig, अच्छा जी, ये हम आ गए हैं एक लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल खोल के रखी है. अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 टाइप की गिग बनी हुई है जो हमारी अभी एक्टिव है. ठीक है, अभी प्रॉब्लम नंबर 1 जो हमने बताया आपको कि अभी यहाँ पे देखिए इम्प्रेशन, क्लिक, ऑर्डर एंड कैंसिलेशन मीन्स एवरीथिंग जस्ट शो दी NA. ये NA क्यों आ रहा है? कुछ महीने पहले ये NA नहीं था. इस पे हमारे इम्प्रेशन या क्लिक या नंबर ऑफ ऑर्डर शो होते थे कि भाई फला गिग पे आपने इतने इम्प्रेशन किए हैं, इतने क्लिक हुए हैं और इतने नंबर ऑफ ऑर्डर किए हैं या इतने नंबर ऑफ कैंसिलेशन आपने की है. ओके, बट अभी ये जो NA आ रहा है इस पे मतलब बहुत ज़्यादा सेलर परेशान है कि ये NA क्या है. सो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नॉट योर फॉल्ट, योर प्रोफाइल इज़ ओके. दिस इशू इज़ बेसिकली फ्रॉम द फाइवर वेबसाइट. ओके, सो वो वहाँ पे ना वेबसाइट की डेवलपमेंट पे काम चल रहा है, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत ये हमारा मसला आ गया है, गिग्स में NA आ गया है. ठीक है, अभी NA ये क्यों आया है? बेसिकली इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि ड्यू टू दिस पेंडेमिक बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट हुई है ओवरऑल वर्ल्ड, यू नो बेटर. सो उसी अनएम्प्लॉयमेंट के बाद ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 मिलियन पीपल हैव जॉइन दी Fiverr.com. जब एक ही साथ इतने सारे बंदे फाइवर प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इशू आएगा, क्योंकि एक ही साथ इतना रश बढ़ेगा. तो अभी तो फाइवर की वेबसाइट भी ज़्यादा फास्ट नहीं चल रही, बहुत स्लो चल रही है. मेरे पास मतलब 2-3 मिनट के बाद जाके ये ओपन हुआ है. ठीक है, तो ये वेबसाइट पे काम चल रहा है इसलिए आपका ये NA हो रहा है. इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, आपकी प्रोफाइल की कोई भी मिस्टेक नहीं है, ये सारा वेबसाइट की गलती है या उसकी कह सकते हैं कि वीकनेस है जो ये प्रॉब्लम आ रहा है.
इसके बाद आपको ये एक चीज़ कंफर्म करनी है कि यहाँ पे ये ना रेड कलर की जो कमेंट आ रही है ये पढ़नी है। यहाँ पे लिखा है कि वी आर वर्किंग ऑन द गेटिंग योर गिग्स इम्प्रेशन क्लिक व्यूज एंड बेक ऑनलाइन। नो वरीज, योर गिग्स आर एक्टिव एंड ऑल द मैट्रिसेस आर कैलकुलेटेड एज यूएल। ओके, सो यू शुड हैव दिस कमेंट इन योर प्रोफाइल। अगर ये कमेंट नहीं है तो फिर आपकी प्रोफाइल के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अभी ये कमेंट फाइवर वालों की तरफ से ही आई हुई है कि भाई आपकी गिग सारी एक्टिव हैं, कोई मसला नहीं है, आप परेशान ना हो, हम अपनी तरफ से इस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अभी चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ पे, वो है बायर रिक्वेस्ट। तो बायर रिक्वेस्ट हम फाइंड करते हैं, मोर में जाके बायर रिक्वेस्ट लिखी पड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्टिव जो बायर रिक्वेस्ट हैं वो हैं 335 और सेंट ऑफर 8, लाइक मैंने 8 ऑफर सेंड किए हैं मगर मेरे पास 335 बायर रिक्वेस्ट एक्टिव हैं। कैन यू बिलीव इट? ये क्यों है? मतलब इसके पीछे मैंने क्या टेक्निक यूज़ की है कि इतनी ज़्यादा बायर रिक्वेस्ट आई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, 3 डेज़ पहले आई थी, 4 डेज़ पहले, 5 डेज़, 2 डेज़, 24 आवर्स पहले आई है। ये $5 की है। मतलब इसमें डेट, टाइम और अपने जो अमाउंट बजट होते हैं ना उसका वो लिखा होता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं 335 एक्टिव बायर रिक्वेस्ट आई हैव इन माई ओन प्रोफाइल। सो द सॉल्यूशन इज़ दैट बायर रिक्वेस्ट आती हैं आप जो गिग बनाते हैं उससे। अभी गिग में क्या टेक्निक यूज़ करें? गिग में बेसिकली होता है कि आप कौन सी कैटेगरी यूज़ करते हैं। स्पेशली फाइवर की बहुत सारी कैटेगरी हैं, जस्ट लाइक अच्छा जी, ये मैंने कुछ हाईएस्ट पेइंग साइट गिग कैटेगरी ऑन फाइवर खोली हैं। अच्छा, इसमें ये सारी 8 जो है ना वो टॉप लेवल की सेलिंग में आती हैं। द नंबर 1 इज वीडियो मार्केटिंग, वेबसाइट बिल्डिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सर्च एंड डिस्प्ले मार्केटिंग, चैटबॉट डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, 3D एंड 2D मॉड्यूल एंड लास्ट इज द बिजनेस कॉपी राइटिंग। जब आप अपनी गिग बनाएंगे तो आपकी गिग जिस कैटेगरी में लाइक करेगी ना वो कैटेगरी आपने परफेक्ट चूज करनी है। वो कैटेगरी चूज करनी है जो हाईली डिमांडेड हो, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो मार्केट में। लाइक मैं आपको अगर अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं, आप लोगो डिज़ाइन की कैटेगरी चूज करें, उसमें बहुत ज़्यादा बायर रिक्वेस्ट आती हैं। आप डेटा एनालिसिस की रिक्वेस्ट में बायर रिक्वेस्ट डालें, डेटा एनालिसिस में बहुत सारी आती हैं। पर्सनली जो मेरी ये 335 बायर रिक्वेस्ट हैं वो मैंने डेटा एनालिसिस रखा है अपना कैटेगरी में। मैंने इस वजह से रखा है क्योंकि मैं एक्सेल और मिनीटेब, मैटलैब में डेटा एनालिसिस करता हूँ, तो इसलिए मैंने अपने गिग के हिसाब से कैटेगरी चूज की है। मगर इस गिग के हिसाब से जो मैंने कैटेगरी चूज करी है उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। तो आपने डेटा एनालिसिस से रिलेटेड अगर कोई गिग बनानी है तो आप उसमें जो कैटेगरी और सब कैटेगरी रखेंगे वो डेटा एनालिसिस रखेंगे। डेटा एनालिसिस रखने के बाद ही आपको बहुत सारी बायर रिक्वेस्ट मिल जाएंगी। इफ यू बिलीव मी, मेरी जो ये 335 बायर रिक्वेस्ट हैं, आई हैव आल्सो चूजिंग द लोगो डिजाइनिंग। उसके बाद मैंने चूज करी है डेटा एनालिसिस। अभी डेटा एनालिसिस को आपको थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उससे रिलेटेड कोई भी गिग बनाएंगे तो आप उसमें अगर ये कैटेगरी डालते हैं डेटा एनालिसिस वाली, तो आई बिलीव दैट यू वुड गेट द इमेंसिव अमाउंट ऑफ द बायर रिक्वेस्ट इन योर प्रोफाइल। अभी लास्ट थिंग मैं बताना चाहता हूँ कि ये बायर रिक्वेस्ट क्यों ज़रूरी है बिगिनर सेलर के लिए। भाई जाहिर सी बात है, अगर बिगिनर सेलर fiverr.com पे आएगा तो विदाउट एनी स्पेशल रिव्यूज एंड वी कैन से दैट पोर्टफोलियो, हाउ कैन द न्यू कस्टमर विल ट्रस्ट ऑन आवर सेलर। सो ट्रस्ट के लिए आपके पास कुछ रिव्यूज होने चाहिए। रिव्यूज मतलब आपके लिए आपके वेबसाइट पे, मतलब आपके प्लेटफॉर्म पे फीडबैक होना चाहिए। ओके, एज वी start to get the buyer request, then the beginner seller will send the proposal to on their buyer request, and I believe that
For the beginner seller, the buy request is the biggest opportunity where he can or she can send their proposal in order to catch the project, or you can sell the order as well. Okay, सो बिगिनर सेलर के लिए बाय रिक्वेस्ट बहुत मायने रखती है, तो प्लीज़ इस पे वर्किंग करें अगर आपने ग्रो करना है fiverr.com पे स्पेशली। और भी बहुत सारे टिप हैं जो मैं आपको देने वाला हूँ अगली वीडियोस में। Okay guys, so my next video would be about how to make the effective and most demanded gig on the Fiverr platform. If you like my video, then don't forget to like, comment and